Warm greetings to everyone. How are you all? I hope you are fine. We here welcome you all again on the second session of passive and active voice into fooling, schooling, Odisha. So, welcome you all to Feeling Schooling Odisha. Today we are going to discuss the multiple choice questions on active and passive voice which we discussed in our last class. I hope you all remember the rules. Okay, the first question. There are only 19 questions, so pay attention. And our first question goes like this: the passive form of the people in South India eat sun-boiled rice. People in South India eat sun-boiled rice. So therefore, our subject is people, and our object is sun-boiled rice. So the subject in total is like the people in South India, and this is verb. So and this is object. We have to, as we have discussed, that we have to change it into the interchange, actually change the place of subject and object. And our verb, it is in simple present. So for simple present we use is, am and are. Is, am and are. So is for singular, am with I, and are for plural. Now, so what will be our answer? Sun boiled rice is, because it is singular, so sun boiled rice is. Third form of eat is eaten. Eaten is eaten by the people in South India, or we can say in South India. Therefore, which is the correct answer? We have is here, is eaten. Otherwise, in other things, it is has been eaten, was eaten, will be eaten, which does not match with simple present tense. Let us come to the second question. Second question, the passive form of the barber cut my hair. Similar formula we are going to apply. We have to first see the tense of the verb. Now this is, our barber is subject. Now cut is verb. Again my hair is object, and verb is again in simple present. Therefore, as I told you, it will be is, am or are. Now my hair is the object. Therefore, as it is singular, we have to use here actually cut. Cut is actually not used here as simple present. It is used as simple past, because we have cut and cut. So here it has been used in simple past. Therefore, barber cut my hair. My hair, for simple past, as I told you, my hair is the object, and for simple past we have these two helping verbs. Now was is for singular and where is for plural. But our object is my hair, which has to take the position of the subject. My hair is singular. Therefore, clear cut, our answer will be my hair was. Now, out of the all four options, we have my hair was cut in the first option. Bujhela, so it is simple past, was where, then clear cut, my hair was cut by the barber. Third ray, the passive form of Sarita has typed the letter. Ethi jo sentence T at a present perfect ray. Achi Sarita, as usual, the subject has typed is the present perfect. तो प्रेजेंट परफेक्ट रे हमारा बीन लगे, तो द लेटर तो ऑब्जेक्ट ही है, तो बीन लगे माने यही वर्डटा बहुत कंपलसरीली लगे प्रेजेंट परफेक्ट बा पास्ट परफेक्ट रे. तो आमे बर्तमान देखिबा श्योर शॉर्ट जे गोटिए केवल गोटिए ऑप्शन रे बीन लागिची आ हैज भी लागिची, कारण द लेटर जो गला
द लेटर सब्जेक्ट पार्ट को गला तापरे बाय सरिता सेटा ऑब्जेक्ट पार्ट इंटरचेंज हो गला ताले हमर एठी जो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हमर गोटिए जगह रे जो हैज यूज्ड हेची हैज बीन टाइप्ड नाउ टाइप तो एज यूजुअल जानचंती V3 so this is the only answer for the passive form of Sarita has typed the letter. Now fourth question, the passive form of Nitin bet the dog hard. Actually ये जो bet अच्छी bet actually एटा present भी bet present रे actually हम ताको pronounce करूँ BEAT beat तार past a bet अब एटा ऑलरेडी एक्शन टा सरी जाइछि तेणु एटा सिंपल पास्ट रे मु आउ टिके पूर्वरु कहितली एटा जो पढ़ा हबो बेट नॉट बीट सो सिंपल पास्ट एटा सिंपल पास्ट माने मु आगरु कहितली वाज नचेत वेर आउ हमर द डॉग हार्ड नितिन बेट द डॉग हार्ड ओके द डॉग वाज बेट by Nitin hard so एटा कोठी हमर ताले गोटिए ही क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन टा क्वेश्चन मार्क अच्छे सेटा हबो नाही प्रथम टारे बीटेन नाही V3 यूज हेई नाही जो एटारे आउ द्वितीय टारे हैड यूज हेची जोटा की पूरा पूरी रॉन्ग तो हमर आंसर हला द डॉग वाज बीटेन हार्ड बाय whom by Nitin. Next asila the passive form of the police are investigating the case. Now ए क्षेत्र रे हमरो सेंटेंस टी हला प्रेजेंट कंटीन्यूअस एटा तो एज यूजुअल सब्जेक्ट रहला आर इन्वेस्टिगेटिंग होची प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस जोटा कि हमें कहू प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे मु कहितली जो हेल्पिंग वर्ब परे बीइंग लागिबो तो एठी कोठी बीइंग लागिची सबुतक ऑप्शंस रे बीइंग लागिची किंतु आमे जो केस टाकू आगु को नबू द केस सेटा तो पॉजिटिव ये नुह प्लूरल नुह सिंगुलर सो द केस वाज हबो एटा जेहेतु आर इन्वेस्टिगेटेड प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाज तो अदो हबो नै ताले सी ऑप्शन गला डी ऑप्शन गला कारण सेठी हैज बीन अछि ताले हमर रहिला ए और बी रे काहे की कंफ्यूजन ना इन्वेस्टिंग गोटे जगह रे अछि इन्वेस्टिगेटेड अछि आमे भलो की जानिचु हमर V3 यूज हुए V3 माने इन्वेस्टिगेटेड इन्वेस्टिंग इज नॉट V3 therefore sure short our answer is the case is being investigated एठी आर अछि द पुलिस प्लूरल सेत में आर इन्वेस्टिगेटिंग जेहेतु द केस टा गला सब्जेक्ट जगह को सेटा सिंगुलर तेनु इज हेल्पिंग वर्ब इज यूज हला नाउ आमे आसीबू नेक्स्ट सेंटेंस को सिक्स सेंटेंस द पैसिव फॉर्म ऑफ डज द गर्ल स्पीक इंग्लिश नाउ एटा आसीगला इंटरोगेटिव सेंटेंस मु लास्ट क्लास रे कहितली इंटरोगेटिव सेंटेंस जतरे थिबो हमर आइदर सेटा WH वर्ड हो बा जो हमर वर्ब रे हो हमर कोन सेटा हेल्पिंग वर्ब बा मॉडल वर्ब्स आमे से जो इजामार टिकू जेहेतु आमे देखिबो इजामार को ही नबू फ्रंट को आउ आमे देखिबो जे सेटा को टेंस रे अछि नाउ एटा अछि डज द गर्ल स्पीक इंग्लिश ओके तो हमर मेन वर्ब हैला स्पीक आउ डज माने आमे जानिबु जे एटा हैला सिंपल प्रेजेंट रे अछि सिंपल प्रेजेंट ता पई हमर ये तो आमु कहिची इज नचेत एम नचेत आर तो as per our singular or plural of the subject. Now does the girl speak English? Now is to ago ko jibo to sure short only one and only option has is in the beginning to amara is English spoken by the girl तो बुझेला तो वाज और हैज तो हबो ही नहीं जदियो से माने क्वेश्चन सेंटेंस ओके कारण एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि हैज तो बिल्कुल नहीं एटा परफेक्ट टेंस रे सेंटेंस टी नहीं तो आमर सेवेंथ क्वेश्चन टा कौन ना द पैसिव फॉर्म ऑफ नोबडी हैज बीटन मी इन कार्ड्स ओके नोबडी हैज बीटन मी इन कार्ड्स ना पैसिव एटा पैसिव तो अच्छी ही
ना ना पैसिव आमको करिया को पड़िबो नोबडी हैज बीटन तो आमर सब्जेक्ट हैला नोबडी आउ हैज बीटन हैला प्रेजेंट परफेक्ट तले माने आमर एठी एटा मीटा जोटा मीटा ऑब्जेक्ट के ये रे अछि सेटा सब्जेक्ट हबो माने तार चेंज टा हबो आई तो स्टार्टिंग रे आई तो जीव ही जीव ना जेहेतु एटा नोबडी थिला आमे हैज यूज करतिलु ता माने मीटा जतले आई हे गला आई जगह रे तो हैज आउ हबो नाही है भी हबो कारण एटा जो कौन आमर कहती प्रेजेंट परफेक्ट रे हैज एंड हैव ही लागे तेणु आई पाखरे हैव आसीबो आउ जेहेतु आउ टिके पूर्वरु मु कहितली जे आमर प्रेजेंट परफेक्ट बा पास्ट परफेक्ट एगुड़ा करे बीन लगे तेणु बीन एटी कोठी अछि आई हैव एक्चुअली आई हैव नॉट बीटन आई हैव बीटन बीन बीटन तो एटा जो बाय नोबडी प्राय तो आमे लेखु ना हूँ ओके तो आई हैव बीन बीटन इन कार्ड्स आई हैव नॉट बीन बीटन इन कार्ड्स तो मैंने कहीं तो नोबडी हैज बीटन माने मते केबे भी कहीं एठी बीटन रो अर्थ माड़ नुह एठी बीटन रो अर्थ जोटा कि आमे कहू फेल कहीं मते हरे नाहंती तो मते कार्ड रे कहीं हरे नाहंती नोबडी हैज बीटन मी इन कार्ड्स तो तेणु आई हैव नॉट बीन बीटन इन कार्ड्स ओके एथरे आउ नोबडीटा में लेखिबु नाही बाय नोबडी एटा आक्षरिक अनुसार एटा टिके थरे थरे जेमती कहिथिली मु एजेंट गुडाक दरकार हुए नाही आमे जेहेतु नॉट यूज करिचु तो एजेंट दरकार नाही नेक्स्ट आसिलुला में the passive form of the doctors have operated the patient now वर्तमान the doctors have operated the patient तो एठी जो है आमर कौन है ना आमर सब्जेक्ट है डॉक्टर्स have operated एटा पुणी आसीगला आमर कौन ना प्रेजेंट परफेक्ट ओके आउ पेशेंट एज यूजुअल आसीगला ऑब्जेक्ट नाउ आमे सामना को नबु एठी द डॉक्टर्स जोटा अछि डॉक्टर्स सब्जेक्ट से प्लूरल अछि सेति सकासे हैव यूज हेछि आमे पेशेंट को आगु को नबु तो पेशेंट को जतले आमे आगु को नबु द पेशेंट हैज आसीबो आ जेहेतु प्रेजेंट परफेक्ट मु आगरु ही कहिछि बीन यूज हबो बीन ताले हमर को आंसरटा सही द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स आउ अन्य गुड़िक तो हम ही ना कारण द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स द पेशेंट कुड बी ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स नेक्स्ट नंबर 9 द पैसिव फॉर्म ऑफ नीता माइट ब्रेक द चेयर ओके एठी कौन है गला ना एठी मॉडल वर्ब यूज हेची माइट तो मॉडल वर्ब जो माइट यूज हेची आमे मु आगरु कहितली जे विल शैल बा सारे मॉडल्स पाखरे आमे बी यूज करबा तो एठी बहुत बी तो यूज करबा ही तापरे v3 टा मेन वर्ब होची v3 ब्रेक रो v3 हबो ब्रोकन ओके तेणु आमे आंसर टा कौन हबो ना द चेयर चली जबो फ्रंट पोजीशन को सब्जेक्ट हिसाब रे नीता आसी जिबे ये हिसाब रे कौटी की ना ऑब्जेक्ट हिसाब रे तो आमर आंसर कौन हबो द चेयर माइट बी ब्रोकन बाय नीता द चेयर माइट बी ब्रोकन बाय नीता मु एज यूजुअल कहिची माइट बी ब्रोकन तो बी आसीगला वर्ब 3 आसीगला द चेयर माइट बी ब्रोकन बाय नीता तो आमर ऑप्शन कोटा ना बी ऑप्शन बुझीला तो मॉडल भाव रे आमे जो आगु आमे जो परफेक्ट रे बीन ये रे बीइंग यूज करथिलु कंटीन्यूअस रे एठी आसीगला बी बिकॉज मॉडल वर्ब यूज हेची तो श्योर शॉर्ट आंसर द चेयर माइट बी ब्रोकन बाय नीता नेक्स्ट आमर नेक्स्ट हैला 10th क्वेश्चन द पैसिव फॉर्म ऑफ वी शुड हेल्प द पुअर ओके वी शुड हेल्प द पुअर नाउ एटी पुणी आमर आसीगला से मॉडल वर्ब शुड आसीगला एज मॉडल वर्ब
नाउ जोटा कि मु कहिची जो बी आसीबो हमर तो हमर एटा आसीगला सब्जेक्ट आउ द पुअर आसीगला ऑब्जेक्ट आ मेन वर्ब हो गला हेल्प तो हमर फर्स्ट पोजीशन को कौन आसीबो ना द पुअर as usual बी लगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड आउ आमर जो वी अच्छी सब्जेक्ट तार ऑब्जेक्ट फॉर्म होची आस तो कोठी आमर शुड अच्छी केवल गोटे ऑप्शन रे शुड अच्छी जोटा कि बी द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस बुझेला पुणी आसला वर्तमान आमर 11th question कौन कहूची ना people have elected Mr. Das president तो people have elected एठी पुणी आसीगला people subject have elected एटा पुणी से भलिया हमर present perfect आउ एटा आसीगला हमर ऑब्जेक्ट तेणु आमे जो वर्ड आमे कहितलु परफेक्ट रे कौन यूज करिवु ना बीन यूज करिवु BEEN तो आमर आसीगले जो फर्स्ट पोजीशन को कौन ना दीटा एक्चुअली अच्छी एठी ओके मिस्टर दास प्रेसिडेंट ना मिस्टर दास was elected तो हबो नहीं कारण एटा have elected अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट रे तो आमर was elected कैंसल हो गला मिस्टर दास had been elected भी कैंसल हो गला सेटा past perfect तो एटा लास्ट होची क्वेश्चन सेंटेंस सेटा हबो ही नहीं आदो कारण दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आमर आंसर कौन हैला ना मिस्टर दास हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो बाई एजेंट जोटा आमे कहितलु केतबेले यूज दरकार नहीं यूज सब पीपल एज यूजुअल पीपल ओनली इलेक्ट करंती तेणु नेक्स्ट फॉर्म इज like the active form of the batsman was declared out now एटा active दिया जाइची तो ना एक्टिव तो आदो नुह बाईटा नहीं बाय एजेंट नहीं तो बैट्समैन वाज डिक्लेयर्ड आउट माने यार एक्टिव आमको करिया को पड़िबो तो बहुत इजी एक्टिव करिया को गले हमको दीटा नियम मान ये करिया को पड़िबो जो आमे टेंस टा देखिबू आ आमे V3 टा देखिबू आ तापरे आमे कोन देखिबू ना टेंस टा तो वाज जेहेतु वाज अच्छी टेंस विल बी सिंपल पास्ट तो सिंपल past will be the tense and then declared तो V3 थे तो पास्ट रे भी डिक्लेयर्ड आसीबो तो बैट्समैन को किए ये करे आउट करे अंपायर जदियो आमे पैसिव फॉर्म रे बाय द अंपायर लेखिना हो किंतु आमे सेटा माइंडफुली लाइक माइंड रे रखी कि कोटा करेक्ट हबो सेटा आमे भाबी कि ये करबू तो वर्तमान द अंपायर तो सबठी अछि तो द अंपायर हैज टू बी रिटन नाउ वर्तमान वाज डिक्लेयर्ड मु कहितली जेमती सिंपल पास्ट तो हमर नियम हैला कि ताले सिंपल पास्ट द अंपायर डिक्लेयर्ड द बैट्समैन आउट ओके कारण आमे एटी हेल्पिंग वर्ब तो यूज करिबुनी आमे एक्टिव फॉर्म को आनिबु तेणु पैसिव फॉर्म रे हेल्पिंग वर्ब यूज वे बुझियला तेणु जदि आमर एटा एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट ही थांता ताले आमर डी ऑप्शन टा करेक्ट ही थांता कारण सेटा डिक्लेयर्स Next, active form of America was discovered in 1492. Okay, now 1492 रे अमेरिका डिस्कवर हेतला से जस्ट नंबर 12 जेपरी सेमती एटा भी आमे अमेरिका टा होची तो सब्जेक्ट ना was discovered ए was तो एज यूजुअल एटा हमरो कोन ना सिंपल पास्ट तेणु आमर सेंटेंस टा जेहेतु एठी भी एजेंट नहीं आमर सेंटेंस टी वाज अच्छी हेल्पिंग वर्ब माने सिंपल पास्ट हबो सिंपल फास्ट रे हमको वाज टा तो रिमूव करिया को भी पड़िबो कारण सेटा होची हेल्पिंग वर्ब तो एठी कोटा ताले पास्ट रे कोटा अच्छी ना फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बाकी गुड़ा को तो क्वेश्चन सेंटेंस अच्छी और प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी से दुटा कैंसिल हो गला सी आउ डी ए आउ बी भितरे आमे कोटा लिखबू पीपल डिस्कवर्ड अमेरिका ना कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका एक्चुअली पीपल के डिस्कवर करंती नाही कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका जोटा कि हमर हिस्ट्री रे अच्छी दैट इज द श्योर शॉर्ट करेक्ट आंसर बुझियला तो नेक्स्ट हैला कोन ना
cheese is made from milk. 14th question, the active voice cheese is made from milk is माने एटा भी हमर पुणी एटा कोन कोथरे अछि ना एटा अछि is made अछि माने एटा आसी गला हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 तो आमर एटा तार एक्टिव फॉर्म टा हमको लिखा को पड़िबो इज अछि माने मु आगरु कहतली हेल्पिंग वर्ब रु हमको जणा पड़िबो जे सेटा को टेंस रे एटा सिंपल प्रेजेंट रे तेणु आमे हेल्पिंग वर्ब टिक तो काढ़ी दबा आउ मेड रो सिंपल प्रेजेंट एठी हमें बनेबा कारण मेड इज V3 हियर व्हाट इज मेड हियर मेड इज V3 पास्ट पार्टिसिपल तो चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क एठी एक्चुअली आमे ही बनो तो आमे लिखबू we make cheese from milk in general it is a generalized statement we make cheese from milk 15th question the passive form of Harish left the door open okay Harish left the door open वर्तमान आमे आंसर रे हमर बाय हरीश तो कोठी भी नाही ओके तेनु एटा आमे पैसिव फॉर्म रे ही लिखिबू एटा अच्छी एक्टिव रे हरीश लेफ्ट द डोर ओपन हरीश हो सब्जेक्ट लेफ्ट होची हमर जो वर्ब जोटा कि पास्ट टेंस रे अछि लेफ्ट द डोर ओपन ओके लेफ्ट एक्चुअली इज इन पास्ट सिंपल पास्ट तेणु आमे कौन करिबू ना हेल्पिंग वर्ब आगो भाबिबू जे पास्ट टेंस पे हेल्पिंग वर्ब टा कोन लेफ्ट पास्ट टेंस माने तार हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर हबो तो आमे देखिबू जे ऑब्जेक्ट कोन ऑब्जेक्ट सिंगुलर ना प्लुरल द डोर एठी ऑब्जेक्ट द डोर होची सिंगुलर तेणु हमर जो यूज हबो येटा माने वाज लेफ्ट टू ओपन नाउ थर थरे जो हमर एटा अछि जो बाई हरीश न लेखिकी आमे to use करबू in some cases to is also used the door was left to open active by हरीश लेखी ही था किंतु दिया ही तो why should we and first option होबो नाही is अछि second option was left opening अछि opening रो प्रश्न उठु नाही सेटा V3 नुह आउ third has been left open has been आसुची हमर past perfect रे present perfect sorry present perfect रे and our sentence टा होची simple past so that will not be taken into consideration now the passive form of I hate people laughing at me I hate people laughing at me वर्तमान आमर सेंटेंस टा कोन I हे गला आमर सब्जेक्ट now hate I hate को टेंस रे अछि ना hate अछि आमर सिंपल प्रेजेंट रे सिंपल प्रेजेंट आउ पीपल लाफिंग एट मी बर्तमान आम एटा को टिके जोर दबा आमर गोटे एक्टिव पैसिव रे गोटे रूल अछि जे किछि वर्ड्स दे फॉलो they are followed by certain prepositions तो laughing at आम at टा को ही निश्चित भाबरे पैसिव रे नबा एट टाकू जदि आमे बाय मी करिक छाड़ दबा बा बाय मी आई हेट माने बाय मी हबो से छाड़ दबा ताले हमर एट टा जेहेतु आमे यूज करिबु नाही प्रीपोजिशन आंसर टी हमर पूरा रॉन्ग हे जबो सो आई हेट पीपल लाफिंग एट मी हेट पीपल लाफिंग एट मी हमर एठी एक्चुअली एटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे नाही ओके कारण आमर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं एटा लाफिंग एट मी एटा गोटे ये नॉन फाइनाइट रे यूज होइछि तणु आमर आंसर हबो मी आसी जीवो सामना को आई चली जिवे पछकू तो आई दी जगह रे माने मी हे जिवे आई हे जिवे मी सो आई हेट बीइंग लाफ्ड एट आई हेट टू बी लाफ्ड एट आई हेट बीइंग लाफ्ड एट मी एक्चुअली I feel the first option will be more appropriate because I hate being laughed at. Okay. Third option being of last option being that will not be taken into consideration. Now let us come to question number 17.
what does our question number 17 says? It says that the passive form of the mobile needs charging. तो आमर passive form करिया को अच्छी sentence रो mobile होची आमर subject, needs होची आमर verb जोटा की अच्छी आमर simple present रे एवं charging mobile needs charging. ओके सिंपल प्रेजेंट अच्छी तो आम सिंपल प्रेजेंट रो वर्ब नबू जोटा कि इज आम एंड आर किंतु एठी जेहेतु आम चार्जिंग को नहीं जीवु चार्जिंग एठी एक्चुअली नाउन हिसाब रे यूज होती माने ऑब्जेक्ट हिसाब रे तो आम दी प्रकार नहीं पारिबु लाइक द मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज एठी एक्चुअली आम एटा सिंपल प्रेजेंट भाव नबुनी आम एठी नीड टू बी नहीं पारू तेणु आमर जो ए ऑप्शन द मोबाइल नीड्स टू बी चार्ज विल बी आल्सो करेक्ट. Charging is needed for the mobile is also correct. So there are two forms of the sentence. The mobile needs to be charged. To and be asigala need to. Okay, to use hobo amaro actually need to, use to, ought to एवडा होची models पाई तेणु this can be the correct answer. Charging is needed for the mobile. That is also if you take charging as noun or object. Next, our answer is the passive form of the house is to let. Now the house is to let. Now eta अच्छी amaro to let is to infinitive noun हिसाब रे इज आसीगला verb. Now आमे कौन लेखिबु कि to let टा object आउ सामना को आसीबो no. The house is to let मतलब the house is to be let. So this actually does not follow the actual rule of our changing from active to passive or passive to active. तो ये जो to be ta important. So this we have to take into consideration. Now asigala amara last question. The active voice of the cobbler polished my shoes. Okay, एटा अच्छी amara ये रे the cobbler polished my shoes. My shoes were polished by the cobbler. So this is actually the cobbler we have to take into consideration. Cobbler is subject, polished is like past tense of the verb, simple past tense, and my shoes object. Okay, so etara ame actually eta active voice of नुह एटा आमे पैसिव वॉइस करिबा. ओके द पैसिव वॉइस ऑफ द कॉबलर पॉलिश्ड माय शूज एटा एक्टिव रे अछि एटा आमे करिबा कोथरे ना पैसिव रे. ओके पैसिव रे एटा कौन हबो ना माय शूज चली आसीबो सामना को जेहेतु एटा सिंपल पास्ट मु कहितली वाज हबो नले वेयर हबो. नाउ इट डिपेंड्स वाज इज सिंगुलर वेयर इज प्लूरल. द माय शूज जेहेतु सामना को चली आसला टेकन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट माय शूज इट इज प्लूरल देयरफॉर माय शूज आर पॉलिश्ड बाय द कॉबलर माय शूज वेयर पॉलिश्ड बाय द कॉबलर. कोटा ठीक आमर ए चेंज रे आर तो केबे भी हबो नाही. मु कहिची सिंपल पास्ट माने वाज हो वेयर विथ्रु गोटे यूज हबो. आ आई हैव माय शूज पॉलिश्ड आई हैड माय शूज पॉलिश्ड एटा दीटा जाक एक्चुअली हबो नाही कारण आमे पैसिव को आनिबु. तो पहले पैसिव रे हबो माय शूज वेयर पॉलिश्ड बाय द कॉबलर. एटा कहीं की हबनी एटा ना आर इज नॉट ए जो आर टा एटा नॉट helping verb of past tense and we require a helping verb of past tense because the whole sentence is in simple past. आशा करुची जे explanation गुड़ी को ठीक माइंड को छुई थिबो या को नजर रे रखी आपण माने भलो भाबरे एग्जाम रे रॉन्ग नकरी सबुतक एररलेस फ्लॉलेस आंसर देबे बोली मु मोर आशा एटा. थैंक यू.